qualities like resilience, determination, focus, and adaptability. But the key element that ties all the qualities together is the mindset. So now let's break it down. The success mindset isn't just about achieving goals. It's about how we approach challenges, setbacks, and even failures. It's about having a growth mindset, which means believing that you can always learn, grow, and improve no matter where you start. Yes, you are right, Rutuja. Those who succeed don't just avoid challenges, they embrace them as stepping stones to their next level of success. So, to know how we can apply this mindset in our life and many more things, we are here with a power packed motivational session on success mindset. So, now we begin with today's first motivational session with our motivational guru, CACS Anshul Agarwal sir. And for that, I request Ms. Neha Nagavkar to highlight the profile by giving a brief introduction of the session speaker, CACS Anshul Agrawal sir. आदाब, मैं हूँ आप सभी की होस्ट और दोस्त नेहा नागावकर। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस अमेजिंग से सेशन में। It's my immense pleasure to introduce before you session speaker none other than CACS Anshul Agarwal sir. From being an average student in his school to achieving merit rank in his 12th and to becoming the first attempt chartered accountant and a company secretary, his journey is incredible. He began his career at Deloitte, continued by Endorama LM Petrochemicals Limited in Nigeria. He found his callings for mentoring and returned to India to head towards the same. He is also a Joe Stock speaker. He is a multifaceted personality who likes to explore new things. He is a mentor, motivator, lifestyle blogger, YouTuber, and keeps on discovering and doing many other activities. I would also like to highlight the quote that he always says that winners don't think about circumstances, they think about opportunities. Because when you think about opportunities, circumstances automatically become favorable. We are very grateful to have you among us, sir, today. So now, let's take a look at a rap song composed and sung by him. Please give him a huge round of applause, guys. Thank you. सुनाई तुझसे नहीं होगा तू रहने दे भाई। दिन में आर्टिकलशिप, रात में पढ़ाई, ना जाने कितने रात पार्ले पे बिताई। पेट की भूख नहीं ज्ञान की बढ़ाई, बुरे वक्त ने मुझे सबकी असलियत दिखाई। जब चाहिए थे पैसे तब ये बात समझ आई, कोई काम नहीं आता सब नाम के है भाई। हालत ही खराब पर चेहरे पे स्माइल, जोड़ा फोन को टेप से टूटी मेरी लाइफ। तेरी मुश्किलों में मैं न मुंह मोड़ूंगा, तुझे रास्ते में नहीं सौंपूंगा। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। अकाउंट्स और टैक्स मेरे दोस्तों के नाम, साले सब एक जैसे, कोई आता नहीं काम कर। मैं नहीं पढ़ा तो लाइफ होगी आम, सीए करके बनना है माँ बाप की शान, पढ़ना आगे करना काम, मुझे जीना नहीं था
गुस्सा थोड़ा शान, थोड़ा खुद को मैंने जाना, थोड़ा खुद पर किया काम, थोड़ी शिक्षा थोड़ा ज्ञान, लेकर माँ बाप का नाम चल दिया देने में भी फाइनल एग्जाम। वो था पल जिसके बाद बदला वक्त मेरा, पता चला असलियत में कितना हक मेरा। पहले चाले थे पाँव में अब जग मेरा, ली है कार खुद की लिया है घर मेरा। अटेम्प्ट्स देने से बदला था कल मेरा, गायब होने लगा अंदर का डर मेरा। मेरी आंखों के सामने था सफर मेरा, जीते हालातों से था अब मन मेरा। अब था वो सब मेरे पास जो मैंने सोचा था, इज्जत दी लोगों ने जिन्होंने मुझे टोका था। जो लड़का हालातों को देखकर अपनी रोता था, उसने बनाई अपनी जगह, वो ऊंचाइयों पर पहुंचा था। तेरी मुश्किलों में मैं न मुंह मोड़ूंगा, तुझे रास्ते में नहीं सोऊंगा। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। तो बस चलते रहे, तो आगे बढ़ते रहे, तो बस चलते रहे, तो आगे बढ़ते रहे। तेरी मुश्किलों का रुख मोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा। Now I request CA Kausik Joshi sir to speak few words. And welcome to our session on the success mindset. I am delighted to see that many of you are here and eager to explore this crucial aspect of achieving our goals. I want to ask you something. What is the most important factor in success? Is it talent? Is it luck? Maybe intelligence? While all of these play a role, the real success, this real secret behind success in every area of life is your mindset. Your mindset controls everything: how you face challenges, how you handle emotions, make decisions, and how you shape your life. You must have probably heard of KFC, right? But did you know that Colonel Harlan Sanders was 65 years old when he started his journey? We have a fantastic speaker lined up for you today, Mr. C.A. Anshul Agarwal. He will bring a wealth of knowledge and experience to the table, and I'm confident that you will find his insights invaluable. So without further ado, I'd like to introduce our speaker for this session, Mr. C.A. Anshul Agarwal. Please welcome him, everybody. Thank you so much, sir. Now I request the speaker of the session to start the session and guide us by your motivational and ever-inspiring thoughts on the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल माई थ्रोट इज़ रियली बैड। से गाना मैंने गाया है, मुझे पता है उससे भी बुरी आवाज़ है अभी मेरी। सो पोस्ट लंच सेशन मुझे भी पता चला कि लंच हुआ है आप लोगों का, अच्छे से हुआ है लंच सभी का। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोग सो रहे थे लंच के बाद? कौन हाँ बोलेगा यार? मैं देख पा रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये पिलर के पीछे वाली चेयर। पिलर के पीछे वाली जो चेयर है, वहाँ पे है क्या कोई मैडम आपके पास में? वहाँ पे है कोई? या अभी था अभी निकल गया? बहुत बढ़िया। पिलर के पीछे वाली चेयर बेस्ट है, पता ही नहीं चलता यहाँ से दिख ही नहीं रहा है, सो रहे के जग रहा है। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। तैयार है सभी लोग? पक्का? और लिटरली बता रहा हूँ, कोई वन वे सेशन नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन। मैं कल से आवाज़ प्रिजर्व कर रहा हूँ जस्ट फॉर दिस वन सेशन। मैं ऊपर वाले से कह रहा हूँ, हे भगवान बस आवाज़ सही रख रहा है, ये सेशन मेरा अच्छा होना चाहिए। रेडी ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट विद मी? पक्का? 100%? चलिए, सो अब मैं जो करूँगा आप वो मेरे साथ करेंगे। रेडी है सभी जने?
कुछ लोगों ने बहुत मजा आ गया। हमारे भैया को इंटरेस्ट ही नहीं, इंस्टाग्राम पे अपडेट भेज रहे हैं, बहुत जबरदस्त। कुछ लोग, मैं कह रहा हूं अप डाउन उनका अपना चल रहा है। काय लावलंय मोटिवेशनल सेशन घ्यायचं होतं, हे काय लावलंय ते? Amazing. सबसे पहले यार, हम बहुत ही पावन भूमि पे बैठे हैं। महालक्ष्मी अंबाबाईच्या या पावन धरतीला मी नमन करतो। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या पावन धरतीला मी नमन करतो। And let us all say together, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। Honorable President of ICI, the Board of Studies Chairman, the Central Council members, Regional Council members, all the branch committee members, session chairman, and my wonderful Vikasa students. This is just amazing event. It is a sight worth not missing. जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, मैं पहली बार कोल्हापुर आया हूँ, आप लोगों ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। मेरा टॉपिक है सक्सेस माइंडसेट। मैं एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ, चलेगा? सोने का एक और मौका मिलेगा, मजा आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है गरीब बच्चे की। अब हम सीए में गरीबी की बात क्यों करते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। ये जो गरीब बच्चा है, ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, जहाँ छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ये लोग स्ट्रगल करते हैं। अब मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद सीए बनता है। ये इतने गरीब थे कि इनके स्कूल के बाहर एक समोसे वाला खड़ा होता था, अहमद भाई। ये जो समोसे बेचता था, अहमद भाई के समोसे भी वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। आज इसने अपनी मेहनत से सीए की डिग्री पास कर ली है एंड ही इज क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना? हर कोई यहाँ सीए बनना चाहता है? ओके, अमेजिंग। अब ये बंदा सीए बनता है और एक अच्छी कंपनी में जॉब लगता है। ध्यान से सुनना, आज उसका एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज आस्क्ड टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी, और उससे कहा है कि अगर तेरा प्रेजेंटेशन, तेरा प्रपोजल पास हो गया तो आज तुझे एक अच्छा खासा इंसेंटिव मिलेगा, एक अच्छी कार मिलेगी, एक बड़ा घर मिलेगा। वो बंदा बहुत मेहनत करता है सुबह से कि यार एक अच्छा प्रेजेंटेशन आज मुझे देना है, और अपने ऑफिस जाता है। और ऑफिस जाने के बाद उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं जाता है। वो बड़ा उदास होता है क्योंकि उसने इमेजिन कर लिया था कि मुझे इंसेंटिव्स मिलेंगे, है ना? पता है इंसेंटिव सबको, है ना? उसने इमेजिन कर लिया था कि मुझे एक बड़ी कार मिलेगी, बड़ा घर मिलेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। वो अपनी गाड़ी में, होंडा सिटी गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर जा रहा होता है। अब अगर मैंने होंडा सिटी बोली है तो समझ लो अभी वो कितना कमा रहा होगा, है ना? अपने घर जाते समय रास्ते में एक सिग्नल पे रुकता है, और ये वही सिग्नल है जहाँ पे उसकी स्कूल हुआ करती थी, और आज भी वहाँ पर अहमद भाई समोसे बेच रहे होते हैं। ये बंदा सिग्नल पे रुका, अपनी गाड़ी में पीछे बैठे बैठे अपनी जिंदगी से परेशान है, क्योंकि आज वो कुछ अचीव कर सकता था लेकिन उसने वो अचीव नहीं किया। आज उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि जो मेरा आज प्रेजेंटेशन होगा वो इतना अच्छा होगा कि मुझे उसके बाद इतना अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, मैं एक बड़ी गाड़ी लूंगा। आई एम गोइंग टू गेट अ मर्सिडीज फॉर मी। होंडा सिटी से मर्सिडीज लूंगा, मैं एक बड़ा घर लूंगा, बड़ा फ्लैट फैमिली के लिए। लेकिन वो सब नहीं हुआ। वो अपनी कार के कांच से अहमद भाई को देखता है, तो अहमद भाई के चेहरे पे आज भी वही मुस्कान है, वही स्माइल है जो उस ज़माने में हुआ करती थी। अहमद भाई के आसपास कुछ छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पॉसिबली अहमद भाई के ही होंगे, और बड़े खुश लग रहे हैं अहमद भाई। वो बंदा क्या करता है, अपनी गाड़ी से उतरता है और अहमद भाई के पास जाता है। अब ऑब्वियसली अहमद भाई तो पहचानेंगे नहीं, पर वो अहमद भाई के पास जाकर कहता है, और अहमद भाई मैं इस साल स्कूल में पढ़ा करता था, आपका स्टूडेंट था, और मैं आपके पास आया हूँ। और उसके हालचाल पूछता है कि आपके हालचाल कैसे हैं, कितना कमा लेते हो, क्या कर लेते हो। तो उसको पता चलता है कि अहमद भाई आज भी समोसे ही बेच रहे हैं। आज से 10 साल पहले भी वो समोसे बेच रहे थे, और आज भी अहमद भाई क्या बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं। लेकिन अहमद भाई
समोसे बेचकर खुश है, और ये बंदा होंडा सिटी में जाकर भी खुश नहीं है। नाउ द क्वेश्चन दैट लाइज इज द रियल हैप्पीनेस और द रियल सक्सेस क्या है? कौन ज्यादा खुश है? अहमद भाई ज्यादा खुश है, जो आज भी समोसे बेच रहा है लेकिन उसके मन में सुकून है, अपनी फैमिली के साथ है, जितना कमा रहा है, जैसे कमा रहा है, वो खुशी से जी रहा है। और ये बंदा जिसके पास बचपन में साइकिल नहीं थी, आज होंडा सिटी में बैठा है, फिर भी ये परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आज वो BMW नहीं ले पाया। प्लीज अंडरस्टैंड, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, गाइज, दीज आर सब्जेक्टिव टर्म्स, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। हम लोग एक कॉमन गलती पता है क्या करते हैं सभी जने? हमारा कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग गलत है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा इसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए, बट हम ये इस चीज को समझने में फेल हो जाते हैं कि क्या हम दोनों की शुरुआत सेम जगह से हुई है। एक बंदा जो साइकिल से शुरुआत करता है, मेरे हिसाब से अगर वो मारुति स्विफ्ट चलाता है तो वो सक्सेसफुल है, लेकिन वो बंदा क्या एस्पायर करता है कि मेरे पास BMW होनी चाहिए। क्या BMW में बैठने वालों की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है? स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। सक्सेस का माइंडसेट अगर आपको बनाना है तो मैं आज इस सेशन से जाने से पहले आपको 3 सक्सेस मंत्रास देकर जाऊंगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसको आपको ध्यान से समझना है। लेकिन सबसे पहले जो आपने मेरे रैप में भी सुना और जो मैंने अभी भी कहा, एक एनालिसिस, मैं पुणे ब्रांच ऑफ विकासा का वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ, वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद ICAI इन द ईयर 2009-10। एक एनालिसिस हम लोगों ने किया था और वो एनालिसिस में देखा कि यार CA कोर्स कौन करता है, किस टाइप के बच्चे करते हैं। तो सर ये एनालिसिस पता चला कि जो बहुत हाई इनकम ग्रुप के पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा CA नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ज़ीरो है, बट वो नंबर बहुत कम है। CA वो बच्चे ज़्यादा करते हैं। एक तो आपने देखा होगा सर, मारवाड़ी लोग बहुत ज़्यादा CA करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा CA करते हैं। अग्रवाल, राठी, है ना, शर्मा, माहेश्वरी, CA। तो ऐसा क्यों है? CA कौन ज़्यादा करते हैं? मैं आपको आंसर देता हूँ, CA वो लोग ज़्यादा करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ जनरलाइज स्टेटमेंट कि मर्सिडीज BMW में बैठने वाले CA नहीं करते हैं, वो भी CA कर सकते हैं और करते हैं, बट उनका नंबर बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोग जो CA करते हैं, आपको पता है ये वो लोग होते हैं जो कॉलेजेस में बड़ी डोनेशंस नहीं पे कर सकते। आई नो अ स्टूडेंट, गाइज, he wanted to take admission for graduation BCom in मिठीबाई कॉलेज ऑफ मुंबई। किसी ने नाम सुना है मिठीबाई कॉलेज? एनीवन? कितने लोगों को पता है? रेज योर हैंड्स। चलो कुछ को पता है। अच्छा, कैन यू टेल मी विच इज द टॉप मोस्ट कॉमर्स कॉलेज इन इंडिया? हाँ, SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। भाई कितना लगता है कट ऑफ उसका? एनी आइडिया? एनीवन? ऐसा इंडिया का टॉप मोस्ट क्यों कहते हैं इसे? अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को ये नहीं पता था कि SRC इंडिया का टॉप मोस्ट कॉमर्स कॉलेज है? अब हाथ ऊपर कर लो ईमानदारी से। हाँ देखो, ये जनता ज़्यादा है, मतलब मेरे यहाँ आने का कुछ तो फायदा हो गया, ये तो ठीक है। इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जिसका कट ऑफ 98-99% लगता है। मतलब अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 98-99% मिलने चाहिए। आम्हाला कोणी विचारलं का रे 11वी मध्ये कॉमर्स का घेतलं, आपण काय उत्तर देतो? मार्क कमी पडले, काय पर्याय नव्हता. That used to be answer. You go and ask your mother. If you go and ask your mother, in their generation, what was the answer? If you got above 70-75%, the only choice was science. If you got less than that, but maybe 60 and above, your choice was commerce. Otherwise, your choice used to be arts. आज ऐसा नहीं है. Today, commerce is taken as a choice. Shri Ram College of Commerce is one of the biggest commerce college in India. मिठीबाई कॉलेज में मेरा एक स्टूडेंट था, उसने BCom का एडमिशन लेना था. Can you believe he paid 6.5 lakh rupees as donation just to take admission in that college, and for which course? BCom.
देवा 6.5 lakh is donation, fees is extra, hosteling charges, everything extra. I mean, can you imagine? आप सब लोग बीकॉम कर रहे हैं यहाँ से, कितनी फीस देते हैं? सर विचारू नका कितनी फीस देते होंगे बीकॉम के लिए? 20,000? नहीं, उससे भी कम। 10,000? 5,000? थैंक गॉड मिट्टी बाई वाले यहाँ नहीं बैठे हैं, अच्छी बात है। 6.5 लाख रुपए डोनेशन बीकॉम के एडमिशन के लिए। दोस्तों आज इमेजिन करो हम सब 10th स्टैंडर्ड पास हो चुके हैं, हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ हमें सेलेक्ट करना है कि हम साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। मैं मेरा बताता हूँ, आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, मेरी साइंस अच्छी नहीं थी बट आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, बट प्रॉब्लम था सरनेम अग्रवाल, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, कहीं पे भी जाओ एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल है, नहीं मिलेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आरक्षण, देयर वाज नो रिजर्वेशन, देयर वाज ओनली वन थिंग, रिजर्वेशन। अगर मेरे पास चॉइस होती थी ऊपर से नीचे आते समय कि कौन से फैमिली में बॉर्न होना है, तो आई वुड हैव मेड अ डिफरेंट डिसीजन। क्या हम में से किसी के भी पास ये चॉइस थी? नहीं। मैं स्नेहा ने एक पॉइंट मार्क किया था, मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, विनर्स डोंट थिंक अबाउट सर्कमस्टेंसेस, दे ऑलवेज थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटीज। अब आ गए तो आ गए अग्रवालों के घर में, अब क्या करना है? 10th के बाद क्या करना है? चलो कॉमर्स तो ले लिया, अब कॉमर्स लेके आगे क्या करना है? सर सिंपल है, बीकॉम और एमबीए, डेडली कॉम्बिनेशन है 100%। कुठल्याही कॉमर्सच्या 11वीच्या मुलांना विचारा पुढे काय करणार? MBA. He don't know what an MBA do. Many of them don't know full form of MBA. चलो अब तो thanks to social media they at least know full form of MBA, Master of मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ लोगों को नहीं पता है। What is the full form of MBA? Master of Business Administration. पर MBA करता क्या है? एक बार खुद से पूछ के देखो, हमें पता है क्या MBA करता क्या है? सर बिजनेस, सर मॅनेजमेंट। अरे बिझनेस म्हणजे काय, मॅनेजमेंट म्हणजे काय, व्हाट एन एक्झॅक्टली MBA डू, रियली डोंट नो। डिफरेंस मुझे पता चला, मैं आपको बताऊंगा। MBA का यार सिंपल फंडा है, अगर अच्छी कॉलेज से करोगे तो उसकी वैल्यू है, नहीं तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। और अच्छी कॉलेज की फीस लाखों रुपए में है, जो मेरे पास तो नहीं थे देने के लिए, मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैं रीजंस बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग CA क्यों करते हैं। डेफिनेटली कुछ एम्बिशियस लोग होता है, बट रीजंस बता रहा हूँ मैं कॉमर्स में आने के बाद क्यों CA किया जाता है। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया CA कोर्स। वाई CA कोर्स? नंबर 1 रीजन, देयर इज नो रिजर्वेशन इन दिस कोर्स। इट इज द ओनली कोर्स जहां पर किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। आप किसी भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। What is looked is reservation, not reservation. सही कह रहा हूं मैं? दूसरा रीजन, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ते हैं, लोकल लैंग्वेज से पढ़ते हैं, परेशान होते हैं कि यार मैं कैसे मैच करूंगा, अपने सोसाइटी के लोगों को कैसे मैच करूंगा। जब बड़े शहर में आते हैं तो वो बड़े शहर के लोगों के चाल ढलन को देखते हैं, उनकी बातचीत को देखते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हाउ विल आई मैच देम? वो तो पहले ही दिन हार मान लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? आगे बढ़ने का अधिकार है। माय डियर फ्रेंड्स, माय गुरु CA डॉक्टर शिवाजी भिकाजी जावरे सर, he belonged from a very small village, Gargundi village in Ahmednagar district of Maharashtra, where he pursued his education up to graduation in Marathi medium, and then he came to Pune to pursue CA. When he came to Pune to pursue CA, you know what happened? Everyone was like, तुझं होणार नाही, तुला जमणार नाही, कारण की तू मराठी मीडियम मध्ये शिकलाय ना, तुला इंग्रजी येत नाही, you won't be able to do. So what he did, he bought a dictionary to translate English and Marathi, and he studied that way. And he not just studied, he became chartered accountant. वो सारे बच्चे देखते रह गए जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते थे,
वो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए. सेकेंड रीजन टू डू CA. CA is a course for hard working students, not just intelligent students. Do you agree with me, all of you? Yes. अच्छे टॉप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चों को इस कोर्स ने सही रास्ता दिखा दिया है. बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, कहते हैं, पेरेंट्स आते हैं. अब मैं तो टीचर हूं तो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं, सर आपको पता है हमारा जो बेटा है, हमारी जो बेटी है, उसको 10th स्टैंडर्ड में 90%, 90%, 12th स्टँडर्ड में 92%. सर होणार, CA होणार 100%, नक्कीच होईल. इज इट श्योर? टेल मी ऑल ऑफ यू. Someone getting 90% in 10th and 12th, is it sure that he will become CA? Yes or no? Can you give it in writing कि वो 100% CA होगा? I can say 100% ज़रूरी नहीं है वो CA होगा. CA बनने के लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्क. आई थिंक अटेम्प्ट की कीमत हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा और किसी को पता नहीं है. We really need to have lot of patience. So second reason to do CA, it is a course for hard working students, not just intelligent students. Third reason, understand. पहला reason clear हो गया सबको? It is a course of deservation, not of reservation. Second, it is a course of hard working students, not just intelligent students. November 2012 examination, November 2013, All India Ranker 1 was a student from Mumbai, Miss Prerna Jaikumar. She belonged to Mumbai slum area. Her education she completed in Marathi medium. She didn't had lot of money to attend, the classes of CA final. वो रात को खुद पढ़ती थी, अपने भाई को पढ़ाती थी. नवंबर 2013 की एग्जाम दी और उसका भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ CA फाइनल, एंड शी नॉट जस्ट क्लियर, शी बिकेम ऑल इंडिया रैंक 1 इन CA फाइनल. So this proves, guys, your generation have missed some words of this noble institution. CAs are known as alphabets of trust. किसी समय ये वर्ड्स यूज किए जाते थे हमारे लिए. CAs are known as alphabets of trust. CAs are known as partners in nation building. We all should be very much proud कि हम लोग क्या कर रहे हैं? CA कर रहे हैं. अभी काबरा सर यहाँ पे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कभी कोई ऐसा काम मत करना जो आपके प्रोफेशन की डिग्निटी को खराब करे. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सभी ने ICI का लोगो देखा है, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको ICI का लोगो. ये ICI के लोगो में ये कौन सी बर्ड है, कोई बता सकता है? ईगल है. और कोई? स्पेसिफिकली ईगल इज नॉट द रॉन्ग आंसर, बट और स्पेसिफिक कौन सी बर्ड है वो कोई बता सकता है? ओके, समवन सेड. हाँ, इट इज अ गरुड़. गरुड़ा और गरुड़. और उसके नीचे कुछ लिखा है जो ICI का मोटो है, कोई बता सकता है क्या है? या एषु सप्तेषु जागृति. बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता. सर मॉड्यूल में होता है, पन्ना पलट लेते हम, हर पेज नंबर में ऊपर होता है, पन्ना पलट लेते हैं, हमें क्या लेना देना इससे? नहीं, ये पता होना चाहिए, राइट? या एषु सप्तेषु जागृति का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग. मैम गुड मॉर्निंग. अच्छा, यही बैठी थी पिलर के पीछे, तो खुद ही पिलर है. हाँ जी मैम, या एषु सप्तेषु जागृति. Amazing. Round applause for her. Amazing. Amazing. ChatGPT? Google? Phone a friend? अच्छा, बुक में पढ़ा है, बहुत अमेजिंग है यार, बहुत अच्छी बात है. या एषु सप्तेषु जागृति का मतलब होता है the one who remains awake when others are sleeping. हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गरुड़ के साथ कंपेयर किया होता है. गरुड़ की क्या पदवी है भाई साहब? वो अपने नगर की रक्षा करता है. ही सपोज टू प्रोटेक्ट. हमारी वो स्टेटस है. When others are sleeping, we are awake. We are doing a course where in India, if you calculate out of 10,000 people, you will not find more than 3 or 4 people as chartered accountants. एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे सर से ही पूछना चाहिए. इंडिया में आज की तारीख में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, क्या लगता है आपको? टेक अ गेस. 60,000? कितना? 5 lakhs.
बताया था क्या सेशन में? ओके, और कोई गैस लेना चाहेगा? पूरे इंडिया में कितने सीए टोटल? 3,75,000। भाई साहब इतना स्पेसिफिक। और कोई? सर क्या लेना देना, हम बनेंगे जिस दिन देख लेंगे सर, आज क्या लेना देना? क्या लगता है सर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर? एनी अपडेट? I agree with you. 3,75,000 is the right number. Okay, and the population of India? Sir, by the time your session will get over, the population will increase by so much. No, not here, somewhere else. What do you think? 130 करोड़ पकड़ ले, 130 करोड़ तो 3,75,000 डिवाइडेड बाय 130 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करते हैं। रुपीज इन थाउजेंड्स की तरह, फिगर्स इन थाउजेंड्स। आपको ये जो नंबर मिलेगा ना, यू विल गेट बिटवीन 3 and 4। इसका मतलब पता है क्या है? अगर 10,000 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए और पूछे आप में से कितने लोग सीए हैं, तो आपको पता है कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे? 3 या 4, 3.5। देखो डिनोमिनेटर तो बढ़ता रहेगा। काय डिनोमिनेटर मध्ये? पॉप्युलेशन। न्यूमरेटर कौन बढ़ाएगा? मैं बढ़ा सकता हूं, आई एम ऑलरेडी सीए, सर इज सीए, सर सीए है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर कौन बढ़ाएगा? आप लोग। आप लोग पता है कौन है? फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर सून गोइंग टू बी अ वेरी बिग इकोनॉमी। Don't you think so? This number should definitely go up. At least 5, at least 10 in 10,000. Everyone needs advice and consultancy of a chartered accountant. But आज इंडिया के पास उतने CAs नहीं है। और आपको पता है इसकी वजह से क्या हो रहा है? जब इंडिया के पास इतने CA नहीं है तो हमारी सरकार मजबूर हो रही है कि अब CAs को जो एक्सक्लूसिव काम दिया था उसको शेयर करना चाहिए। किसके साथ शेयर करना चाहिए? अभी बोलूंगा तो बवाल मच जाएगा। शेयर करना चाहिए बाकी प्रोफेशनल्स के साथ, और ये दिख रहा है हम लोगों को होते हुए। आई मीन इफ यू वुड हैव हर्ड अबाउट NFRA, तो आपने सुना होगा सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, NFRA is coming or came, and new standards on auditing are coming, the responsibility is being shared। डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर प्रपोजल चल रहा है कि अब टैक्स ऑडिट का अधिकार सिर्फ सीए को नहीं देना चाहिए, दूसरों को भी देना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स है, डिमांड सप्लाई का गैप है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को ये चीज़ समझनी है कि हम जो कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स हमसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क एक्सपेक्ट करता है। हमें चीज़ों को अच्छे से समझना है। जिस दिन आप सीए बन जाओगे और आप एक कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू में जाओगे, रिसेंटली कैंपस इंटरव्यूज वर कंडक्टेड बाय एसिया, राइट? जब आप एक कैंपस इंटरव्यू में जाओगे, आपको पता है उस दिन क्या लगेगा? भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट, मी कौन? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा लगेगा एकदम मैं भारी, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। जिस द मोमेंट यू विल एंटर दिस ऑडिटोरियम, you will see more than 1,000 more chartered accountants. Maybe someone is merit ranker, foundation, inter, final, all 3 level merit ranker. Someone is CA, CS, CMA, everything. Whatever you can or whatever you can't imagine, he's everything. उस दिन पता है क्या लगेगा? अबे क्या किया है मैंने मेरी जिंदगी में? मतलब बैकग्राउंड में लिटरली गाना बजेगा, भगवान है कारी तू। सीए की जो डिग्री है ना, वो आपको पता है क्या कर सकती है? वो आपको नौकरी नहीं दिला सकती है। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, कड़वा सच है। सीए की डिग्री आपको इंटरव्यूअर के सामने की कुर्सी पे बैठा सकती है, जॉब नहीं दिला सकती। आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको इस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में मोनोपोलिस्टिक बनना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 1500 लोग हैं, 1000 लोग हैं जो कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए यहां पर आ जाए हैं, सभी का एक ही गोल है। सबको क्या चाहिए? पैकेज चाहिए। द एनालिसिस शेयर्स दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, न्यू क्वालिफाइड सीए एंटरिंग इनटू प्रैक्टिस इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। व्हाई इज इट सो? बिकॉज प्रैक्टिस नीड्स लॉट्स ऑफ पेशेंस। वैसे ही कह रहा हूं सर, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस नीड्स लॉट्स ऑफ पेशेंस।
और आजकल सीएस जो यंग सीएस है, हमारी जो जेन ज़ी है, वो क्या चाहती है सर? वो चाहती तो छोड़ो, हम जब फाइनल की पढ़ाई करते हैं ना सर, लाइब्रेरी में बैठते हैं, तभी ऐसा फील हो रहा है ऊपर से ऐसा नोटों की बारिश हो रही है। द मोमेंट वी बिकम सीए, ऐसा कुछ छत फटने वाला है और ये ऐसे ऊपर से बंडल गिरेंगे 500 के, एकदम से घर के बाहर आके गाड़ी खड़ी हो जाएगी, खुद आईसीआई प्रेसिडेंट आएंगे आपको डिग्री देने। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं लगता? इमेजिन बता, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? होना भी चाहिए, और नहीं होता तो बीमारी है मैडम, होना चाहिए। अभ्यास करताना काहीतरी पाहिजे ना मोटिवेशन. सर आहे माझी मोटिवेशन, ते दुसऱ्या शहराला आहे. Are you getting my point? Everyone wants quick money. Will you get money right from day one in practice? The answer is no. So number of students, fresh qualified CA, getting into practice is reducing day by day. So what people want? Package. Everyone want package. Can everyone get the job? Give me answer. Everyone coming in the campus interview, will everyone get the job? The answer is a big no, no. तो कैसे डिसाइड होता है सर? सर ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे डिसाइड होता है? आंसर है नहीं. मैं आपको एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन दोनों के बेसिस पे बता रहा हूँ. 1500 बच्चे अगर कैंपस प्लेसमेंट में बैठे हैं, आप समझ लो 500, 550, मैक्सिमम 600 बच्चों को जॉब मिलेगी कैंपस में, बाहर और मिल जाएगी. तो सर किस बेसिस पे मिलता है जॉब? Is it only merit ranking? The answer is no. You need 3 things to outshine in this perfectly competitive market. I hope all of you understanding perfectly competitive market. Clear? आपको नहीं लग रहा कि अभी मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ, मुझे सब CA स्टूडेंट दिख रहे हैं, ये सब एक जैसे हैं. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. मैंने एक सवाल पूछा, उधर से मैडम ने हाथ ऊपर करके जवाब दिया. What happened? She outshined. अभी काबरा सर ने एक सवाल पूछा था, हर्ष नाम के बच्चे ने एक जवाब दिया था. He outshined. Now what he has done? What she has done? उन्होंने इस भीड़ में अपनी एक पहचान बना दी. आप समझ रहे हो? अपना एक अस्तित्व बना दिया. तो इसको कहते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में मुझे मोनोपोलिस्टिक बनना पड़ेगा. और ये मोनोपोलिस्टिक आप कैसे बनोगे? ये 3 चीजों से बनोगे. ध्यान से सुनना. सीए तो आप कर ही रहे हो भैया, टैक्स, कॉस्टिंग, FM ये तो पढ़ना ही है. इसमें कोई ऑप्शन है? भाई 40 तो लाना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं हो, 40 तो लाना ही पड़ेगा. ये 3 चीजें क्या है? नोट इट डाउन. नंबर 1, द फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट हैव गुड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. आई स्टार्टेड माई कॉन्वर्जेशन. MBA क्या करता है? आई डिड ICITSS फ्रॉम हैदराबाद. इंस्टीट्यूट का एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, आपने अगर सुना होगा, जो CA फाइनल के बाद होता है ना, हैदराबाद में होता है. अभी आई थिंक 4 वीक्स का है. जब मैं करता था तब 6 वीक का होता था. आई वॉज द सेकेंड बैच इन हैदराबाद. वहाँ पर हमें एक सर ने सिखाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CA एंड MBA. CA वो होता है जो ये सोचता है कि गंजे के सर पे बाल कैसे आएंगे. MBA वो होता है जो गंजे को पहले कंघी बेचता है और फिर बताता है कि बाल कैसे आएंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग है. हमारे पास बहुत नॉलेज है. एक बार सोचो तो सही, हम कितना पढ़ते हैं. CA फाउंडेशन से लेकर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से CA फाइनल. हाउ मच डू वी स्टडी, बट डू वी एवर फोकस ऑन अवर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स? थिंक अबाउट इट. Yes, Institute of Chartered Accountants of India says you need to do ITSS इंटरमीडिएट के बाद और एडवांस प्रोग्राम CA फाइनल के बाद. 15 दिनों में कितना सीख लोगे ये बताओ. हाउ मच विल यू स्टडी इन 15 डेज? अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कौन कितनी अपॉर्चुनिटी लेता है. अगर आप ये प्रोग्राम्स अच्छे से अटेंड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है पब्लिक स्पीकिंग की. यहाँ पर आओ, सबके सामने कुछ बोल के दिखाओ, कोई भी टॉपिक, कैसा भी टॉपिक बोल के दिखाओ. पहले दिन ऐसा होता है. इट्स वेरी नॉर्मल. It's very normal. Every one of us who are speaking on stage today, we started like this only. It has to be like this. But हमारे क्यूरिकुलम में उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है. पर एक चीज़ बताओ, क्या मैं सारी चीज़ें ICAI से ही एक्सपेक्ट कर लूँ कि इंस्टीट्यूट ने ही सब कुछ करना चाहिए? इंस्टीट्यूट ही हमें पढ़ाए, ये मतलब अडॉप्ट कर लो हमें, है ना? आप हमारा घर चला लो, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब आप ही रख लो. ऐसे थोड़ी होगा. ICAI आपको एक पासपोर्ट दे रहा है जिससे आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं. इंडिया में, इंडिया के बाहर किसी भी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं.
आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप एजुकेशन में आ सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हैं। भैया जी को नींद आ रही है, वाह, क्या बात है, कोयल सी तेरी बोली। रात भर सोया नहीं था? अच्छा, पेपर का प्रेजेंटेशन कर रहा था, बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग। नहीं, गुड नाइट सर, नो प्रॉब्लम। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? तो पहली चीज मैंने क्या बोली, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यार मैं कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिंपल वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया। नंबर 1, मेरे ओपिनियन में जितने भी बच्चे यहाँ सीए फाइनल वाले हैं, कितने लोग हैं सीए फाइनल वाले? ओके, काफ़ी ऑडियंस है। आई थिंक यार आप लोगों को ना वो रेजिडेंशियल कोर्स करना चाहिए। ICAI का बहुत बढ़िया कोर्स है। वो जो कोर्स होता है हैदराबाद में भी होता है और दूसरी जगह पे भी कंडक्ट होता है। उस कोर्स में ना आपको इतना ज़्यादा तपाया जाता है, मुझे अभी भी याद है उस समय अमरजीत चोपड़ा सर प्रेसिडेंट हुआ करते थे ICAI के। हमारे रूम में रात को 2 बजे अनाउंसमेंट होती है कि 10 मिनट में सबको सूट बूट ब्लेजर पहन के ऑडिटोरियम में जमा होना है, बिकॉज प्रेसिडेंट आ रहे हैं ICAI के, रात को 2 बजे। अब आप इमेजिन, मैं भी ऐसे ही सो रहा था, भाई तो ब्लेजर पहन के सो रहा है, इनको पता था, मैं बिना ब्लेजर के ही सो रहा था। आप सोचो 10 मिनट में ऑडिटोरियम में जमा, यू फील लाइक अ मिलिट्री कैंप। हर रोज प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, हर रोज प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, गलत बोल रहे हो, फंबल कर रहे हो, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का मराठी, क्या तो भी निकल रहा भाई मुंह से, क्या ही मालूम, गॉड ओनली नोस। बट द मोर यू स्पीक, द मोर प्रोफिशिएंट यू विल बिकम। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, you will have to give yourself opportunity, and these type of sessions I am very happy and I am very glad कि आज इतने सारे बच्चों ने ये मौका लिया है कि ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है। बट अगर ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो ऐसी और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसमें पेपर प्रेजेंटेशन होता है। आपको पता है पेपर प्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है एक आर्टिकल लिखने से, और आर्टिकल लिखने की शुरुआत होती है रिसर्च करने से। तो आप ये प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। जो ये सब प्रोसेस में नहीं जाएगा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? अरे यार ये सेक्शन 54 और 54E में क्या फ़र्क है कैपिटल गेन में, समझ नहीं आ रहा है। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ये है। लेकिन जो इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा उसको पढ़ाई चिल्लड़ लगेगी, पढ़ाई आसान है। हाँ, मेरा पेपर रिजेक्ट हो गया, ये बड़ा चैलेंज है। व्हाट शुड आई इम्प्रूव इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट, ये मुझे सोचना है। तो खुद को मौका दो, और खुद को मौका कैसे देना है? वी आर इन द एरा ऑफ YouTube, come on guys, we are in the era of social media. What do you need in this era to grow yourself? Nothing, you need a mobile phone, that's all. मैं आपको एक इतनी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। आप सपोज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, इंड AS पढ़ रहे हैं, जो भी लेवल पे आप हैं, ये तो पढ़ते हैं सभी जने। कैन यू नॉट ट्राई टू मेक अ रिविजनरी वीडियो फॉर योरसेल्फ ऑन अ मोबाइल फोन? आपने पढ़ाई तो कर ली, कंटेंट है, अब आपको क्या चेक करना है? मैंने कौन सी स्किल बोली? नंबर 1 प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। खुद का वीडियो बनाओ, और मैं एक चीज़ बोलूँ, उसको देखो, बर्दाश्त नहीं होगा, खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पहली वीडियो में मैं बता रहा हूँ, पहली 10 वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे, बंद कर दोगे, मन ही नहीं करेगा खुद को सुनने का। एक चीज़ बताओ, जब आप खुद को नहीं सुन सकते हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कोई और आपको सुने? मिल गया ना आपको इंप्रूवमेंट कि अब मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। मेरे पास जितने भी नए लोग आते हैं, टीचर्स बनते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ। पहले खुद का हर एक वीडियो बैठ के देखना है, वो बोले सर इससे बड़ी पनिशमेंट ही नहीं हो सकती। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। रोटेटिंग चेयर होती है ना, घूमने वाली, किसी की आदत होती है, नर्वसनेस में बहुत सारी हरकतें होती है, ऐसे घूमने जा रहे हैं। जब आप आउटपुट देखते हैं तब समझ में आ रहा है कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। किसी का प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, कोई तो एक अल्फ़ाबेट में प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं, किसी एक वर्ड में प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। तो वो आप जब खुद का वीडियो देखते हैं तब समझ में आता है। दूसरा, इसको इम्प्रूव करने का दूसरा तरीका है, बी अ गुड लिसनर। अच्छा सुनो। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी कम्युनिकेशन, तो सुनो ज़्यादा। कोई भी कंटेंट हो सकता है, इट कैन बी एनी कंटेंट। बी अ गुड लिसनर। हेडफोन्स लगाओ और सुनो, डेली रिलीजियसली वो कंटेंट सुनो, धीरे धीरे वो आपके अंदर आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रहता हूँ इंदौर में। आई हैड अ स्टार्टअप विच रिसेंटली गॉट एक्वायर्ड बाय अ गुड़गांव बेस्ड एडटेक। सो मैं अब हर महीने में 10 डेज गुड़गांव में रहता हूँ और 20 डेज में रहता हूँ इंदौर में। इंदौर इज़ अ वेरी वेरी गुड सिटी, वेरी ब्यूटीफुल सिटी।
कितने लोग आए हैं कभी इंदौर? अच्छा, बहुत बढ़िया। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, आपको पता है? क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है इंदौर। अच्छा, अच्छी चीज़ वहाँ पता है क्या? वहाँ पे लोग बहुत शांत दिमाग के हैं। मतलब ऐसे गाड़ी वाड़ी ठोक दी तो यहाँ पे तो ऐसे, और ना जाने मन से कितनी बातें निकलती, आप समझ सकते हैं? इंदौर में ऐसा नहीं है। नॉर्मली लोग बहुत कूल माइंडेड है। मैं जब महीने में 10 दिन गुड़गांव जाता हूँ ना, मेरे को अलग ही सिनेरियो मिलता है। वहाँ पे अलग ही टाइप की लैंग्वेज चलती है। गुड़गांव से इंदौर आने के बाद मुझे 2 दिन मौन व्रत रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो गुड़गांव का असर अंदर आ जाता है ना, उसको डिटॉक्स करने में 2 दिन लग जाते हैं। इससे एक चीज़ समझ में आई, पता है क्या? आप जैसा सुनते हो वैसा इंकलकेट होता है। तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई? प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशंस के लिए। क्लियर हुआ सबको? दूसरी चीज़, यू नीड टू हैव वेरी गुड कंट्रोल ऑन योर IT स्किल्स। IT स्किल्स का मतलब क्या? एक बार मेरे को स्टूडेंट का मेल आता है, बहुत सारे बच्चे मेल लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है इंस्टाग्राम पे इधर उधर, तो मेल मैंने ओपन किया तो मेल एकदम ब्लैंक। मैं ढूंढ रहा हूँ भाई कहाँ पे है मेल, कुछ अटैचमेंट हो, कुछ हो, कुछ भी नहीं। फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, आई थिंक यू हैव फॉरगॉट टू राइट द मेल, दिस इज़ माई नंबर, कॉल मी, वॉट एवर इज़ द प्रॉब्लम, कॉल मी। वो स्टूडेंट का कॉल आता है, वो कहती है, लड़की थी, वो कहती है सर मैंने पूरा मेल सब्जेक्ट लाइन में लिख दिया। सर मैंने मेल भेजा तो है, मैंने कहा कहाँ है? सर देखो सब्जेक्ट लाइन में, ऊपर लाइन में, पूरा मेल वहाँ लिख डाला। भाई साहब, इमेजिन आप CA बन गए और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या GST डिपार्टमेंट को एक मेल लिखना है, और मेल कहाँ लिखा हो? सब्जेक्ट लाइन। क्या एक्सपेक्ट करते हो यार आप? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हमें ये चीजों को समझना पड़ेगा। IT स्किल्स, you need to have very good command on Microsoft Office, entire MS Office, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो। और जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, वो कॉर्पोरेट सब जने दे डोंट यूज इवन MS Office, you know, they use Google Docs, Google Sheets, Google, you know, all those things. So you need to learn all these things. अगेन इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट मत करना। IT प्रोग्राम होता है, उसमें इंस्टीट्यूट सिखाने की कोशिश करती है, 15 दिन में कितना सिखा देगी भाई, कितना सिखा देगी? ये सीखना किसको पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल रेजिस्टिंग टू यूज मैकबुक। हमारे ऑफिस में ज्वाइन होते हैं, उनको ज्वाइनिंग पे मैकबुक देते हैं, तो वो मैकबुक नहीं है, मेरे तो बचपन से विंडोज़ यूज़ किया है, वो ऐसा इधर बटन दबाओ स्टार्ट, ये मैकबुक का कौन सा कीबोर्ड आ गया भाई, ये एप्पल का, इस पर तो समझ ही नहीं आ रहा, स्टार्ट का तो बटन ही नहीं है, कंट्रोल का है, शिफ्ट का है, अल्टर का है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो आप अगर रेजिस्ट करेंगे ना, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू लेगा, वो ये सारी चीजें देखेगा, दैट हाउ ओपन, हाउ फ्लेक्सिबल यू आर टू लर्न न्यू थिंग्स। So second thing is you need to learn each and every IT skill. Don't say no to anything. Social media is good or bad. That's not my topic for today, but that's an amazing topic. Don't you think so? I mean, someone may come and say, sir, मैं Instagram use नहीं करता. Instagram is very bad. उसमें time waste हो जाता है. I don't think so. Instagram bad नहीं है. Bad हम हैं. हमें नहीं पता कि उसे कितना use करना चाहिए. आप लोग इंटरमीडिएट के जो बच्चे बोथ ग्रुप्स क्लियर करके आर्टिकलशिप ढूंढेंगे, हाउ विल यू कनेक्ट सिटिंग इन कोल्हापुर विद मे बी इफ यू वांट टू अप्लाई इन बिग 4, हाउ विल यू कनेक्ट? विल यू डू कबूतर जा 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 टाइप ऑफ थिंग? यू विल हैव टू कनेक्ट थ्रू लिंक्डइन. यू विल हैव टू ओपन योर लिंक्डइन प्रोफाइल. सर मेरे को तो आता ही नहीं है लिंक्डइन. वो क्या होता है लिंक्डइन? वो कैसे यूज करता है? वो फेसबुक की तरह होता है? होता फेसबुक की तरह है, पर वो बिजनेस का फेसबुक होता है. समझ में आ रहा है? इन सब के ऊपर भाई मैं बता रहा हूं सीरियसली, आप लोग जो जनरेशन में हो ना, आपकी जनरेशन में ये सारी चीजें ऑनलाइन मुफ्त में अवेलेबल है. यूट्यूब पे सिंपली जाओ और टाइप करो हाउ टू क्रिएट अ इंस्टा लिंक्डइन अकाउंट, हाउ टू मैनेज अ लिंक्डइन अकाउंट, एंड देन यू कैन डू दोज थिंग्स फ्रॉम देयर. सो जब मैं कह रहा हूँ IT स्किल्स, दोस्तों IT स्किल्स में ये सारी चीजें आनी चाहिए. कोशिश करो कुछ नई स्किल ऐड करने की. Maybe it can be a creative designer, maybe it can be video editing. ये छोटी छोटी चीजें आपके कभी भी काम आ सकती है. You need to have these skills with you. You need to know editing, you need to know typing, you need to know all these basic things, because यही आपको perfectly competitive market में क्या करेगी? Outshine करेगी. Monopolistic. तीसरी skills, general knowledge.
बेस्ट इसका मैं सजेशन देता हूँ, कोई भी एक यूपीएससी का यूट्यूब चैनल पकड़ लो जिसपे हर रोज सुबह एक वीडियो मिलेगी। उनका एक सब्जेक्ट होता है, उसका नाम है करंट अफेयर्स। सुना है किसी ने? है ना, करंट अफेयर्स। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल इंडिया के खोल के देखना, 1-1 लाख बच्चा लाइव देख रहा होता है। उनका सिलेबस वही है, करंट अफेयर्स। आज भी पता है मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हुए हैं बच्चों के, सर सितंबर 24 इंटर अटेम्प्ट है, मुझे कौन सा फाइनेंस एक्ट लगेगा। अब हमारे निर्मला ताई ने कन्फ्यूजन भी छोड़ दिया है कि 1 हफ्ते के बाद हम डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर बात करेंगे। अभी बच्चा कंफ्यूज, हर जगह कंफ्यूजन कि मैं क्या पढ़ूं। अच्छा, कुछ बच्चे तो कहते हैं सर अगर मैंने अच्छा अपने मन से ही बहुत कुछ पका रहे हैं, सर अगर मैंने सितंबर 24 दिया तो मैं पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ूंगा, और सर अगर मैं उसमें फेल हो गया, देखो सब उसने डिसाइड ही कर लिया, अगर मैं उसमें फेल हो गया तो जनवरी 2026 में तो सर डीटीसी आ ही जाएगा, जैसे निर्मला ताई ने आके बोला ही उसको, तो सर डीटीसी मेरे को पूरा वापस पढ़ना पड़ेगा। सर मैं एक सोच रहा हूँ सितंबर 25 का टाइम स्किप कर देता हूँ, ये बेस्ट है सर। सितंबर 25 का अटेम्प्ट ही स्किप कर देता हूँ और फिर सर मैं डीटीसी पढ़ूंगा, जनवरी 26 में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगा। इज दिस एन एक्सक्यूज? कैन यू बिलीव? लेट मी टेल यू, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से भी पहले कोई एक्ट था, आगे भी नया एक्ट आएगा। जो बेसिक है दोस्तों वो कभी चेंज होगा क्या? मुझे एक बात बताओ, बेसिक कभी चेंज होगा? नहीं होगा। तो इस चीज से क्या डरना है? जितने भी प्रैक्टिसिंग सीएस हैं या बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अरे उनको एग्जाम नहीं देनी है, पर उनसे पूछो कि डायरेक्ट टैक्स कोड आने के बाद सर नहीं पढ़ना पड़ेगा सबको, कंपल्सरी पढ़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक सर इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो गोइंग टू कंडक्ट लॉट ऑफ सेशंस फॉर मेंबर्स ऑल्सो आफ्टर द न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड गेट्स अनाउंस्ड। एक सीए लोगों में एक टर्म होता है सीपीई, पता है किसी को? स्टूडेंट को किसी को पता है अबाउट सीपीई? अरे आर्टिकलशिप करते हो, अपने बॉस का सीपी करते होंगे ना यार, आप में से कोई पता है? उठ गए भैया, बताओ क्या होता है फुल फॉर्म? मैंडेटरी आवर्स होते हैं जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंप्लीट करने होते हैं। ओके, और किसी को कुछ पता है सीपीई? सीए छोड़ दोगे? मैंने बता दिया इसका मतलब, तो बता दूं हाँ या ना? हाँ। अरे अच्छे से बोलो, बताऊं सीपी का मतलब? अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि सीए बनने के बाद पढ़ाई से मुक्ति, तो गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि सीए बनने के बाद भी आपको हर साल कुछ घंटे कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। सीपी का फुल फॉर्म है कंपलसरी प्रोफेशनल एजुकेशन। मैंडेटरीली कुछ घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। पढ़ना मतलब इंस्टीट्यूट कुछ सेशंस कंडक्ट करती है, उसका सीपी क्रेडिट मिलता है आपको। वो क्रेडिट के लिए आपको सेशंस अटेंड करना पड़ेगा, जैसे अभी बैठे हो ना, ऐसे अलग अलग चीज़ों के सेशंस होते हैं, वो अटेंड करना पड़ेगा और वो क्रेडिट आपको मिलेगा। और वो सिर्फ प्रैक्टिसिंग सीए के लिए नहीं है, वो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? तो तीसरी चीज मैंने आपको क्या बोली है? जनरल नॉलेज। तीनों चीजें रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा? गुड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। करेंगे सभी जने काम इस पे? यस और नो? वेरी गुड। सेकंड चीज मैंने क्या बोली? आईटी स्किल्स। ये सब आपके एडिशनल टास्क है, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीए के अलावा जो भी कुछ कर रहे हैं उसके अलावा ये चीज करना है। और तीसरा क्या है? जनरल नॉलेज। क्लियर हुआ सभी को? पक्का? 100%? तो अभी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग क्या बनेंगे, और आप लोग एक साथ जोर से कहेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आया? आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए जो आपके पेपर्स चेक करेगा। समझ में आया? रेडी ऑल ऑफ यू? पक्का? और लिप मूवमेंट, लिपसिंग नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा क्या बनेगा, समझ। रेडी ऑल ऑफ यू? चलो ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। क्या बनेगा? किसी के मुंह से सिर्फ अकाउंटेंट तो नहीं निकल गया, अभी सुन लेगा सही में। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। वापस बोलो, कम ऑन, क्या बनेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। सो विद दिस नोट आई कंक्लूड माय टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। और लास्ट के बस 2 मिनट और लूंगा। मुझे पता है ताली का मतलब है जल्दी जाओ, आई नो, मैंने भी किया है। हाँ, लास्ट के 2 मिनट लूंगा। यार
मुझे 12 साल हो गए सीए बन के। 2011 में मैं सीए बना हूँ, मई 2011 स्पेसिफिक, और जून 2011 में सीएस बना हूँ। एक साथ बैक टू बैक दोनों कोर्सेज फर्स्ट अटेम्प्ट। आज मुझे 12-13 साल हो गए, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ को बहुत मिस कर रहा हूँ। आप लोग ना अपनी ज़िंदगी की बेस्ट लाइफ में हो, और लिटरली मैं कह रहा हूँ अभी आपको फील हो रहा होगा कि मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे नज़रिए से अगर आप देखोगे ना तो आज आपके पास सब कुछ है। मटीरियलिस्टिक शायद बहुत कुछ नहीं है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपको बाद में मिलेगी, बट नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ें आज आपके पास सब कुछ है। तो मैंने ना एक छोटी सी पोएम लिखी है अपने लिए, मतलब टू अंशुल अग्रवाल हु वाज अ सीए स्टूडेंट। इट इज़ रिटन बाय सी अंशुल अग्रवाल। बस वो पोएम मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ और फिर आई विल टेक लीव फ्रॉम हियर। आप लोगों की और मेरी लाइफ है, तो अंशुल अग्रवाल टू अंशुल अग्रवाल। वो सुबह सुबह जल्दी उठकर क्लासेस जाना, वो सुबह सुबह जल्दी उठकर क्लासेस जाना, और क्लासेस से फिर ऑफिस जाना, और फिर ऑफिस से घर पे आने का ढूंढना कोई बहाना। ऑफिस जाकर हम क्या, सर आज सर दुख रहा है, सर बरो वाटत नहीं, जाऊ का लवकर। ऑफिस से घर आने का ढूंढना बहाना, और घर आकर फिर होमवर्क करना और सेल्फ स्टडी करना। है कितना प्यारा ये टाइम टेबल, है कितना प्यारा ये रूटीन। फिर एक बार वही टाइम टेबल मैं फॉलो करना चाहता हूँ, फिर एक बार वही रूटीन मैं फॉलो करना चाहता हूँ। आज मैं एक स्टूडेंट, फिर एक स्टूडेंट रहना चाहता हूँ। वो टैक्स ऑडिट के समय ऑफिस में लेट नाइट तक काम करना, और नींद आने पे टपरी की चाय पीने जाना। वो टैक्स ऑडिट में लेट नाइट तक काम करना और नींद आने पे टपरी की चाय पीने जाना, और बॉस के साथ गप्पे लड़ाना, और थक कर ऑफिस के ही सोफे पे सो जाना। आज फिर से एक बार ऑफिस के सोफे पे मैं सोना चाहता हूं। आज फिर से एक बार मैं ऑफिस के सोफे पे सोना चाहता हूं। आज फिर से एक बार अपने बॉस के साथ चाय पीने जाना चाहता हूं। आज मैं एक स्टूडेंट, फिर एक स्टूडेंट रहना चाहता हूं। वो एग्जामिनेशंस का नजदीक आना, और बॉस के साथ प्रिपरेशन लीव के लिए नेगोशिएट करना। कितनी बेटर वो एग्जामिनेशंस का नजदीक आना और बॉस के साथ प्रिपरेशन लीव के लिए नेगोशिएट करना। वो बॉस का ज्यादा काम देना, ये आता वो बॉस का ज्यादा काम देना और हमारे बहाने बनाना। बॉस का ज्यादा काम देना, हमारे बहाने बनाना। फिर एक बार वो नोक झोंक मैं करना चाहता हूं। फिर एक बार वो नोक झोंक मैं करना चाहता हूं। फिर एक बार बॉस से अपनी हर गलती की माफी मांगना चाहता हूं। आज मैं एक स्टूडेंट, फिर एक स्टूडेंट ही रहना चाहता हूं। झाली आता परीक्षा, बनलो मी सीए। झाली आता परीक्षा, बनलो मी सीए। कल तक जब मैं सीखता था, आज लोग मुझसे सीखते हैं। कल तक मैं कन्वेंस की चोरी करता था, है ना, कोणाला सांगू नकोस ऑफिस में क्या करता। कल तक मैं कन्वेंस की चोरी करता था। किसी के बॉस तो नहीं है ना भाई, यहाँ पर सब राज खुल जाएंगे। कल तक मैं कन्वेंस की चोरी करता था, आज मैं कन्वेंस देता हूं। आज कोई मुझे मेरी गलती पे माफ नहीं करता। आज कोई मुझे मेरी गलती पे माफ नहीं करता। अपनी गलतियों के लिए एक बार मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। आज मैं एक स्टूडेंट, फिर एक स्टूडेंट रहना चाहता हूं। थैंक यू सर। Energetic and motivational session. The success mindset is all about delivering that you are capable of creating the life you want. Keep pushing boundaries, stay resilient, and keep learning. Because with the right mindset, success is not just a possibility, it's a guarantee. To move further, request Ms. Asmita Patil to take the podium and give vote of thanks. It's truly a surreal moment for all of us. For so long, we have been watching you on our phone screen, admiring your teaching skills and your clarity of thought and the way you inspire and connect thousands of students like us.
And today, sitting in the same room as you, listening to you in person, is nothing short of a privilege. So while watching your videos, we have often paused to take screenshot or rewind to catch every word you say. But today we wish there could be a rewind button in real life too, to relive this very moment and bottle up all the lessons and insights you have shared. Thank you so much, sir, for being the part of Bihar. Now I humbly request everyone to rise and join me in giving Sri Anshul Agrawal, sir, a much deserving standing ovation. दोन्ही पण कार्ड चेंज करतो तिथं फ्रीज करा सांगा Thank you. Be seated. चालेल थोडंसं कटकट घ्या लावलेलं Also, I'd like to thank CA Kaushik Joshi, sir, for being here. Thank you. 3 मिनिटं आले की थांबवणं झाली Thank you, Asmita. Now I request Say Kaushik sir to give memento as token of appreciation to Say Anshul Agrawal sir. Thank you, sir. Now I request Miss Asmita to give memento to Say Kaushik Joshi sir. Thank you, Asmita. Really, it was a pleasure listening to your words, sir. And also feeling grateful and making realize that success mindset is not just shifting from a fixed mindset where you think your abilities are limited to one that focused on continuous improvement. Now, with these words, I conclude this session. 1 मिनिट राहिलं फ्रीज फ्रीज फ्रीज